Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support. I'm your teacher Muhammad, and today we are going to solve the exercise of chapter The Flying Machine Part 1 from New Oxford Modern English Book 3, and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें। किसी भी कमेंट क्यूरियस सजेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Oh Allah, increases his knowledge. The name of this chapter is Flying Machine Part 1, and first section of exercise is section merrily and swiftly adverbs. Question number 1 is choose an adverb from the box to describe each action. हमें नीचे कुछ actions दिए गए हैं, action words दिए गए हैं, इनको describe करने के लिए हमने जो suitable adverbs हैं वो इस box में से choose करना है। box में जो words given हैं वो हैं sweetly, badly, smartly, quietly, lazily, gracefully, noisily, loudly, slowly, blissfully, quickly and carefully. Action words जो हमें given है वो है running, singing, barking, marching, dancing and crawling. जब हम suitable words को choose करके इनके साथ mix करेंगे तो ये बन जाएगा running quickly, singing sweetly, barking loudly, marching smartly, dancing gracefully and crawling slowly. इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच पिक्चर। यहाँ पर हमें 6 पिक्चर्स गिवन है और इनसे रिलेटेड हमने एक सेंटेंस बनाना है जिसमें इसको डिस्क्राइब किया जा सके कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में जितने भी एक्शन वर्ड्स और एडवर्ब्स को हमने यूज़ किया ऑलमोस्ट सभी इन 6 पिक्चर्स में यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर को देखते हुए और गिवन वर्ब्स और एडवर्ब्स को यूज़ करते हुए जो सेंटेंस बनाएंगे वो है बॉयज़ आर रनिंग क्विकली, girl is singing sweetly, dog is barking loudly. इसके बाद है the army is marching smartly, the girl is dancing gracefully, the baby is crawling slowly. The next section of exercise is section B, not nice. Question number 1 is read this aloud. इसको बुलंद आवाज़ में पढ़ें। यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ गिवन है या स्टोरी कह सकते हैं इसको। Yesterday was a nice day, we went for a picnic. We packed a nice lunch and walked down a nice path. Soon we came to a nice forest. The trees were tall and nice. We saw lots of nice birds and some nice animals. The path ended at a nice stream. We jumped into the nice water. Then we ate our lunch. इसके बाद गिवन है हमें क्वेश्चन नंबर 2, राइट द पैराग्राफ अगेन। इस पैराग्राफ को दोबारा से लिखें। यूज़ द एडजेक्टिव्स बिलो इंस्टेड ऑफ नाइस। जितनी जगह भी नाइस का वर्ड रिपीट हुआ है उसकी जगह आपने इन एडजेक्टिव्स को यूज़ करना है जहाँ पे भी सूटेबल लगे हमें। फर्स्ट अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स, पहले हमने इनको अनस्क्रैम्बल करना है क्योंकि ये स्क्रैम्बल वर्ड्स यानी इनके स्पेलिंग्स आगे पीछे कर दिए गए हैं। यू मे यूज़ योर ओन वर्ड्स इफ़ यू विश, और आप खुद से भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कोई सूटेबल वर्ड है तो। यहाँ पे जो वर्ड्स हमें गिवन है यहाँ पर हम सबसे पहले जो स्क्रैम्बल वर्ड्स हैं इनको अनस्क्रैम्बल करते हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ को रीराइट करेंगे। पहला वर्ड हो जाएगा हमारे पास ह्यूज, नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग, इसके बाद है कूल, नेक्स्ट इज़ क्लियर, थिक, सनी, बम्पी, ब्यूटीफुल एंड स्मॉल। और पैराग्राफ में मैंने सब गिवन वर्ड्स को नहीं यूज़ किया बल्कि खुद से भी वर्ड्स ऐड किए हैं। Yesterday was a sunny day. We went for a picnic. We packed a tasty lunch and walked down a winding path. Soon we came to a beautiful forest. The trees were tall and shady. इसके बाद है we saw lots of colorful birds and some interesting animals. The path ended at a clear stream. We jumped into the cool water. Then we ate our lunch. The next section of exercise is section C, short and sweet. We can write some words in a short way. कुछ words को हम short करके भी लिख सकते हैं या abbreviation की form में लिख सकते हैं। Example, we can write JAN dot instead of January. हम पूरा January की बजाय इसको हम JAN लिख के dot लगा सकते हैं। Question number 1 है Do you know what these stands for? हमें कुछ words given है, 3 words हैं FEB, AUG and SEPT. इसकी हम full form बताएंगे। A is February, B is August and C is for September.
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. नाउ ट्राई दीज. सबसे पहला वर्ड है कैपिटल एन, दैट इज़ फॉर नॉर्थ. बी है कैपिटल ई, ईस्ट. सी कैपिटल एस फॉर साउथ. एंड डी कैपिटल डब्ल्यू फॉर वेस्ट. ई है हमारे पास एम ओ एन डॉट, इट इज़ फॉर मंडे. एफ है टी यू ई डॉट, ट्यूसडे. जी डब्ल्यू ई डी डॉट, वेडनेसडे. एच टी एच यू आर एस डॉट, थर्सडे. आई एफ आर आई डॉट, फ्राइडे. J S A T dot Saturday. and K S U N dot Sunday. L है हमारे पास A dot M dot is equal to before noon, या इसको हम लैटिन लैंग्वेज में एंटी मेरिडियम बोलते हैं. और लास्ट में है हमारे पास M पे स्मॉल p डॉट स्मॉल m डॉट इज़ इक्वल टू आफ्टरनून, यानी दिन के 12 बजे के बाद का जो टाइम है उसके साथ हम PM लिखते हैं और उससे पहले AM. PM को हम लैटिन में बोलते हैं पोस्ट मेरिडियम. The next question is question number 3. In the abbreviations below, the letters stand for the first letter or letters of the word. जब हम इस तरह से किसी चीज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं उसको हम एब्रीवेशन बोलते हैं, ठीक है. और यहाँ पे हमें 4 गिवन है, KMKGC/ONP.T.O. और ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं हमने बताना है. KM इज़ फॉर किलोमीटर, KG इज़ फॉर किलोग्राम, CO इज़ फॉर केयर ऑफ, एंड PT ऑफ प्लीज़, टर्न ओवर और पेज टर्न ओवर, दोनों के लिए यूज हो सकता है. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.